ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے بولو ہے مہرباں بولو خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو خدا ہے مہرباں بولو ہے وہ مہرباں بولو جلسہ ختم ہونے کے قریب آ گیا دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو مبارکبادی اس بات پر دیتا ہوں کہ جلسہ 11 بجے تک ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ بیٹھ کر کے بھی اسی طرح سن رہے ہیں کھڑے ہو کر کے بھی اسی طرح سن رہے ہیں یہ قرآن کی نسبت ہے دستار بندی کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے عقل مند بچہ کو اسکول بھیجیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بے وقوف کو مدرسہ بھیجیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے آخری آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے وضو کے بغیر 3 آدمی قرآن چھو سکتا ہے باقی کو چھونے کی اجازت نہیں وہ کون 3 آدمی ہے جو بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے کسی پر اگر غسل واجب ہے اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے اور چوتھا بڑا خوبصورت بہت پیارا سوال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے نیند آپ کی آنکھ سے اڑ گئی ہے وہ نیند واپس کیسے آئے گی گولی سے نہیں وہ قرآن سے آئے گی قرآن کی کون سی سورت ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو میٹھی نیند آ جائے گی یہ میرا آخری سوال ہے
इंशाअल्लाह कुरान पर अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, 3 सवाल है और पैगाम मेरा शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था कि सबसे पहली आयत कुरान की कौन सी है, आखिरी आयत कौन सी है? तो सबसे पहली आयत कुरान की इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, और आखिरी आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह, ये कुरान की सबसे आखिरी आयत है। कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, कुरान की सबसे आखिरी सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह है। दूसरा सवाल आपसे था, 3 आदमी है, बगैर वुजू के कुरान छू सकता है, नाबालिग बच्चा है, पढ़ने के लिए बगैर वुजू के कुरान छू सकता है, कुरान चलने वाला है, उसको बचाने के लिए बगैर वुजू के आदमी कुरान को छू सकता है, कुरान में जुस्तान लगा हुआ है, आदमी कुरान को छू सकता है, कुरान में जुस्तान लगा हुआ है, बगैर जुस्तान के कुरान नहीं है, तो आदमी बगैर वुजू के कुरान छू सकता है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल था, गुस्ल वाजिब है, अभी गुस्ल नहीं किया है, कुरान पढ़ना क्यों मना है? इसलिए कि अल्लाह पाक है, पाक को पसंद करता है। जब आदमी कुरान की तिलावत करता है, वो अल्लाह से बात करता है, अल्लाह नापाक को पसंद नहीं करता, इसलिए जब तक गुस्ल ना हो जाए तब तक कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। कुरान है शाहिद के खुदा हुस्न से खुश है, ये भी तो सुनो हुस्न से, ये भी तो सुनो हुस्न से, कुरान है शाहिद के खुदा हुस्न से खुश है, किस हुस्न से ये भी तो सुनो हुस्न अमल से, कुरान है शाहिद के खुदा हुस्न से खुश है, किस हुस्न से ये भी तो सुनो हुस्न अमल से, कुरान है शाहिद के खुदा हुस्न से खुश है, किस हुस्न से ये भी तो सुनो हुस्न अमल से, होता है तौहीद मुबारक तुम्हें अकबर, साबित भी करो इसको मगर तर्ज अमल से। तेजी के साथ खाता खोल रहा हूँ, आप बहुत अदब और सलीके से सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, कुरान है क्या चीज और कुरान के साथ हमारा क्या सुलूक हो रहा है। 3 मिनट का पैगाम है, खूबसूरती के साथ आप सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि ये कबूल हो जाए, पीर की सरबुलंदी हम सबको अल्लाह अता फरमाए। पूरी दुनिया का इत्तिफाक है कि खुदा की किताब असली हालत में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक किताब बाकी है जो असली हालत में मौजूद है, वो कोई और किताब नहीं है, खुदा का कुरान है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी दुनिया का इत्तिफाक है कि किसी भी मजहब की किताब का हाफिज नहीं है, किसी भी मजहब की किताब का हाफिज नहीं है। 120 मजहब पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में 120 मजहब के मानने वाले लोग हैं, किसी भी मजहब की किताब का हाफिज नहीं है, सिर्फ एक मजहब है जिसकी किताब का हाफिज आपके सामने मौजूद है, वो कोई और मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, कुरान है क्या चीज? अंधेरे से निकालता है, उजाले में लेकर के आता है। कुरान क्या चीज है? जमीन की पस्ती से उठाता है, आसमान की सरबुलंदी में लाता है। कुरान है क्या चीज? भटके हुए को सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। कुरान क्या चीज है? एक ही किताब है, देखना भी इबादत, छूना भी इबादत, पकड़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत, अमल करना भी इबादत, तिलावत करना भी इबादत। पानी से आदमी थकता नहीं है, आसमान को देखने से आदमी थकता नहीं है, और हरा दरख्त देखने से आदमी थकता नहीं है। माँ का दिल बेटा पैदा करते हुए थकता नहीं है, माँ का दिल बेटा पैदा करते हुए थकता नहीं है। एक मुसलमान, उसका दिल किससे थकता नहीं है? कुरान पढ़ते पढ़ते उसका दिल थकता नहीं है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, कुरान है क्या चीज? दस्तरखान है, जो आप उससे चुनना चाहे मिल जाएगा। कुरान क्या चीज है? रोशनी है,
आपको कब्र का अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा। कुरान है क्या चीज? नजात देने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज? मजबूत रस्सी है, अगर आपने उसको पकड़ लिया वो खुदा तक पहुंचा देगा। कुरान है क्या चीज? रूहानी जिस्मानी बीमारी के लिए शिफा है, दवा है। कुरान आप पढ़िए, रूहानी बीमारी आपके दिल से निकल जाए। कुरान के साथ हमारा क्या सुलूक है, आपको सुनकर के हैरत होगी। बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग, एक नंबर के लोग, सुपर क्लास के लोग, उससे पूछिए कि तुम्हारा बेटा क्या है तो वो बोलेगा डॉक्टर है। तुम्हारा बेटा क्या है? इंजीनियर है। कुरान जानता है? नहीं जानता, थोड़ा सा बेदीन है। नमाज जानता है? नहीं जानता, थोड़ा सा बेदीन है। थोड़ा सा बेदीन है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी जान निकल गई है और कोई बात नहीं, तो बचा क्या? कुरान नहीं है, नमाज नहीं है, तो फिर क्या है? दूसरी बात को याद रखिएगा, 3 साल का बच्चा हो गया आपका, घर से बाहर मत निकालिए, घर की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए। अगर आपने 3 साल के बच्चे को घर से बाहर निकाला, कुरान की उसको तालीम नहीं मिली, यही आगे चल करके वसीम रिजवी बनेगा, यही आगे चल करके हमीद तलवारी बनेगा, यही बच्ची आगे चल करके नरगिस बन जाएगी। ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप पूरे मजमे में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको खुदा से ताल्लुक है, तो आप कहेंगे ताल्लुक है, लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि आपको खुदा से ताल्लुक है। कुरान से अगर ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, कुरान से अगर ताल्लुक नहीं है तो पूरे मजमे में गारंटी के साथ बोल रहा हूं, खुदा से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात आपको बता रहा हूं, सुन करके हैरत होगी। आप पढ़ते जरूर हैं लेकिन अखबार पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। आप देखते जरूर हैं लेकिन मोबाइल देखते हैं, कुरान नहीं देखते। आप भेजते जरूर हैं लेकिन मैसेज भेजते हैं, अल्लाह के कुरान को अल्लाह के पास नहीं भेजते। आप गप में टाइम पास करते जरूर हैं लेकिन कुरान की तिलावत में अल्लाह से बात करने का आपको मौका नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आज का जलसा बड़े हौसले के साथ हो रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ हो रहा है। इन बच्चों को मुबारकबादी दीजिए कि इनके माँ बाप का अरमान आज पूरा हो रहा है, अल्लाह ने पूरा किया। इसी तरह कल आपका भी अरमान पूरा होगा। बच्चा आया पढ़ने के लिए मदरसे में, खाने का इंतजाम नहीं है, मोहल्ले के सारे लोगों से कहा गया इस बच्चे का इंतजाम कर दो, कोई मोहल्ले का आदमी तैयार नहीं हुआ, तो उस्ताद ने कहा कि बेटा कुरान पढ़ने के लिए आए हो, अल्लाह गैब से इंतजाम करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, एक आदमी का विकेट गिर गया, वो दौड़ा दौड़ा आया, उसका बेटा आया कि मेरे बाप का विकेट गिर गया, मर गया, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। चला गया, धरती का बोझ धरती के अंदर गया। मैं 40 रोज इस बच्चे को खिलाऊंगा। उस्ताद ने कहा कि बेटा देखो गैब से इंतजाम हो गया। जब 39 दिन पूरे हो गए तो शागिर्द सामने आ गया कि उस्ताद 40 रोज का तो मसला हल हो गया, अब आगे क्या होगा? का बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरा विकेट गिरेगा। दूसरे चिल्ले में दूसरा विकेट गिर गया, तीसरे चिल्ले में तीसरा विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के तमाम लोगों को उस्ताद ने जमा करके कहा कि देखो तुमने इस बच्चे के खाने का इंतजाम नहीं किया, गैब से इंतजाम हो रहा है, तुम्हारा एक एक आदमी चुन करके उठाया जा रहा है, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये पूरे मोहल्ले को खा जाए। ताकों में सजाया जाता हो, आँखों से लगाया जाता हो, तावीज़ बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। जब कौलो कसम ले, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो। नेकी पे बड़ी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हो, 100 बार रुलाया जाता हो। इंशाअल्लाह कुरान ताक पे होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कुरान ताक पर होगा, कितने सच्चे कुरान की तिलावत करने वाले हाथ उठा। जरा ध्यान रखिएगा, आप बेखबर मत रहिएगा, आपके दिमाग को भी टटोला जा रहा है कि आप लोग दिलो दिमाग से यहाँ हैं कि कब्रिस्तान पहुंच गए।
ध्यान रखिएगा, दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कुरान का हिफ्ज़ कैसे होता है, कुरान का हिफ्ज़ कितना आसान है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा, फौज में जवानों से कहा, जब लड़ाई हो तो लड़ाई के लिए खड़े हो जाना, जब लड़ाई खत्म हो जाए तो कुरान को हिफ्ज़ करना। अब लाखों की तादाद में फौज है, हजारों की तादाद में फौज है, लड़ाई होगी तो लड़ाई करना, जब लड़ाई खत्म हो जाए तो कुरान याद करना। इस तरकीब से लाखों को अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए खड़ा फरमा दिया। दूसरी बात को याद रखिएगा, अरब में दो कबीले थे, कोई अगर बाहर से मेहमान आया 3 दिन ठहराते थे, 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहराते थे। पूछने वाला पूछता था कि हमें तो 3 दिन से ज्यादा रुकना है, कहा कि नहीं 3 दिन ही रह सकते हो, उसके बाद यहाँ से 9-11 हो जाओ, छुट्टी करो, 3 दिन से ज्यादा रहने की तुमको इजाजत नहीं है। कहा कि बात क्या है, क्या वजह है कि 3 दिन रहने देते हो उसके बाद निकाल देते हो। कहा कि हमारी जबान असल में कुरान है, तुम बाहर के आदमी हो, कहीं हमारी जबान को बिगाड़ ना दो, हम चाहते हैं कि कुरान की हिफाजत हो, उसकी जबान की भी हिफाजत हो। तीसरी बात को सुनिएगा, अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। आपको पता है कि रूस कौन सा मुल्क है, बहुत बड़ा जालिम था, कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देता था, कुरान जो पढ़ने वाला पढ़ता था उसको सूली पर चढ़ा दिया करता था। उस मुल्क में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत कैसे की, आपको सुन करके हैरत होगी। दर्जी की दुकान है, बच्चा सिलाई सीखने के लिए आ रहा है, उस्ताद हाफिज कुरान है, दुनिया ये समझ रही है कि ये सिलाई सीखने के लिए आया है। वो उस्ताद सिलाई कटाई के दरमियान 1 आयत सिखा दिया करता था, 2 आयत सिखा दिया करता था। दुश्मन के मुल्क में 32 साल के बीच में अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत फरमा ली। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा कैसे हाफिज बनता है, मैं राज बता रहा हूँ। बाप के दिल में बच्चे की पैदाइश के बाद अल्लाह डालता है कि तुम कुछ मत बनाना, हाफिज कुरान बनाना। ये किसने डाला, अल्लाह ने डाला। और बच्चा जैसे ही पढ़ने के लायक हुआ, मदरसे के अंदर दाखिल हुआ, निगाह करम उस्ताद की हुई, बच्चा हाफिज कुरान हो गया। चौथी बात को ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को हाफिज बनाना, बच्चे को मास्टर बनाना दोनों आसान है। चुटकी में आपका बच्चा मास्टर बनेगा, चुटकी में बच्चा आपका हाफिज बनेगा। मैं राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब वो 5 साल स्कूल में मुकम्मल कर ले, उसको वहां से निकाल करके मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल का मदरसे में 3 साल के लिए, स्कूल में 5 साल के लिए। आपने पहले स्कूल में पढ़ाया 5 साल के लिए, वहां से पढ़ करके निकला, मदरसे में आया 3 साल के लिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा और उसका दिमाग इस तरह तेज हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज हुआ करता। अब जब 3 साल का गैप हो गया है, ट्यूशन करा करके अपने बच्चे को पढ़ाइए, वो अपने तमाम साथी को पीछे कर देगा और सबसे आगे निकल जाएगा। आपका बच्चा पहले मुसलमान होगा, बाद में मास्टर हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल तैयार हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आज तो हाफिजों की बड़ी तादाद है, पिछले जमाने में हाफिज होते नहीं थे, एक हाफिज को कई जगह खत्म करना पड़ता था। एक जाली हाफिज साहब आ गए, कहा कि मैं हाफिज हूँ। कहा कितने दिन में खत्म करोगे? कहा कि जितने दिन तुम कह दो। राजधानी की रफ्तार से ले जाऊंगा, शताब्दी की रफ्तार से ले जाऊंगा, 5 दिन में भी मुकम्मल करके दिखा दूंगा। कहा कि जब आप शताब्दी हैं, जब आप राजधानी है, तो 3 दिन में मुकम्मल कर दिए, चल ले तू जलाल, तू इस बला को डाल। 3 दिन में जाली हाफिज ने कुरान खत्म कर दिया। यालमून तालमून यालमून तालमून यालमून तालमून को सीधे दिल्ली पहुंचा दिया। बीच में एक आदमी पढ़ा लिखा था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज साहब कुरान खत्म हो गया। कहा खत्म हो गया? कहा 22वें पारे में सूरह यासीन कब आई? तो कहा कि सूरह यासीन जिंदा पर थोड़ा पढ़ी जाती है, वो तो मुर्दा पर पढ़ी जाती है, इसलिए सूरह यासीन छोड़ दिया। वो कितनी नेक साथ थी, किया तू हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फज़ल है तुझ पर, किया जो खत्म कुरान को।
सुनहरा ताज है सर पर, कलाम अल्लाह शाहिद है, शफाअत का हुआ सामा, कलाम अल्लाह शाहिद है, पिदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नजर को नूर हक दे दे बहाने से, बजा है नाज़ भी उसका, बजा है नाज़ भी उसका, दस्तार बंदी पे दुआ को है निसार, हाफिज तेरी दस्तार बंदी पे। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूं, इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अमल भी करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, दाया बाया अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाया बाया अमल करेंगे तो एक कान से लेंगे दूसरे कान से पास हो जाए, मुकम्मल ठोस अमल करना है, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, कुरान इंसान को कैसे कामयाब करता है, ये मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद एक मुताला दूंगा, कुरान का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। आप लोगों ने दिल से सुना, दुआ करता हूं अगर जवान बेटी आपके घर में है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत उमर से बाप ने कहा, तुमको ऊंट चराने के लिए नहीं आता है, तुम दुनिया कैसे काटोगे? कुरान आया, अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, दुनिया को चलाने का हुनर अता फरमाया। मस्जिद बनी है, मोहल्ले में सबसे पहली मस्जिद बनी है, मोहल्ले के लोग मुसलमान नहीं थे, आज कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए हैं। अब इस मस्जिद में, इस बस्ती में पहली मस्जिद बन रही है। इस मस्जिद का इमाम कौन होगा? बूढ़ों को देखा गया तो कुरान याद नहीं है, बच्चे को देखा जा रहा है तो पूरी बस्ती में एक बच्चे को कुरान याद है। उस बच्चे का नाम था अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं कि मेरी मस्जिद में, मेरे मोहल्ले में सबसे पहले मस्जिद बनी। उस मस्जिद के इमाम के बारे में लोग मीटिंग कर रहे थे कि इमाम किसको बनाया जाए, बूढ़े को बनाया जाए, जवान को बनाया जाए, बच्चे को बनाया जाए। तो किसी ने कहा कि बूढ़े को इमाम बना दो, किसी ने कहा कि जवान को इमाम बना दो। फैसला इस पर हुआ कि बूढ़े तो जरूर हैं, जवान तो जरूर हैं, लेकिन कुरान ज्यादा याद नहीं है, बच्चे को इमाम बना दो, उम्र छोटी है लेकिन कुरान ज्यादा है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, शौहर को कैंसर हो गया, शौहर गैर मुस्लिम है, बीवी मुसलमान है, अपने इस्लाम को छुपाए रखा है, शौहर को कैंसर हो गया, बीवी तसल्ली देती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह शाम एक गिलास में पानी पिलाऊंगी, तुमको 40 रोज मुसलसल इसको पीना है, उसके बाद डॉक्टर से टेस्ट कराना कि तुम्हारा कैंसर बाकी है या नहीं। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा। अब देखिए इत्तेफाक, शौहर गैर मुस्लिम है, बीवी को पता है, शौहर गैर मुस्लिम है, बीवी को पता है, लेकिन बीवी मुसलमान है, शौहर को पता नहीं है। कैंसर लग चुका है, पूरे घर को पता है, लेकिन बीवी तसल्ली देती है कि घबराने की कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर ने तुम्हें कैंसर बताया है, लेकिन जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसने कैंसर नहीं बताया है। एक गिलास पानी पी लिया करो, सुबह भी पीना, शाम में भी पीना, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। 40 रोज के बाद बीवी की हिदायत के मुताबिक जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर ने कहा कैंसर गायब हो चुका है, ये जादू है कि अजूबा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बीवी ने कहा कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कहा मैं गैर मुस्लिम हूँ, कैसे कलमा पढ़ूंगा? तुम्हारा कैंसर जो खत्म हुआ है कुरान की वजह से खत्म हुआ है, कलमा पढ़कर के शौहर मुसलमान हो गया। चौथी और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा एक सहाबी से कि तुम तो गरीब आदमी थे, इतनी बकरी कहां से आ गया? तुम गरीब आदमी थे, तुम्हारे पास तो तिनके का सहारा नहीं था, इतनी सारी बकरी कहां से लेकर के आ गए हो? चोरी डकैती की बकरी तो नहीं है? कहा कि या रसूल अल्लाह ये इनाम की बकरी है। कहा इनाम की बकरी कैसे मिली? कुरान से इनाम मिला। बादशाह के बेटे को सांप ने काटा था और बादशाह आदमी को ढूंढ रहा था कि सांप का जहर कैसे उतरेगा, सांप का जहर कैसे उतरेगा। इत्तिफाक से मेरा काफिला उधर से गुजर रहा था तो हमें बुलाया गया बादशाह के सामने कि मेरे
अगर तुम बचा लोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने कुरान को पढ़ा और बच्चे के ऊपर दम कर दिया, जहर उतर गया, बादशाह ने इनाम में मुझे बकरी दी है। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से पूछा, वो कौन सा कुरान था जिसको तुमने पढ़ा जहर खत्म हो गया? वो कौन सी सूरत थी जिसको तुमने पढ़ा जहर खत्म हो गया? कहा कि या रसूल अल्लाह सूरह फातिहा पढ़ी थी और जहर खत्म हो गया। क्या तुम्हें कैसे पता था कि सूरह फातिहा से जहर खत्म हो जाता है? आपसे सुना था कि सूरह फातिहा में शिफा है, इस ख्याल से पढ़ दिया कि आपकी जबान सबसे ज्यादा सच्ची है, ये कलाम सबसे ज्यादा सच्चा है। बीमारी मुसीबत आती है अपने गुनाह की वजह से, शिफा अल्लाह देता है। मैंने कलाम को पढ़ा, सूरह फातिहा को पढ़ा, अल्लाह ने लाज रख लिया, जहर को उतार दिया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान वो, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारीख़ कुरान हो गए। बस आखिरी पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। आपके दिल में कुरान की अजमत है, इसलिए सन्नाटे में आप सुकून के साथ सुन रहे हैं। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, आपका हाथ जब उठता है हौसले के साथ तो पता चलता है कि आप जो जवान है, थके नहीं। 40 मिनट में खा पी करके जब आदमी बैठता है तो उसका दिमाग जवाब दे देता है। लेकिन ये कुरान की मजलिस है, इतना लंबा बयान आप सुन रहे हैं एक के बाद दूसरे को, लेकिन फिर भी आप थके नहीं हैं, ताज़ा दम है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। चौथा पैगाम दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान ने कहा कि जहां पानी है वहां जिंदगानी है, जहां पानी है वहां जिंदगानी है। आज की साइंस क्या कहती है? जहां जल है वहां जिंदगी सफल है। आज की साइंस कह रही है और कुरान ने 1400 साल पहले कहा जहां पानी है वहां जिंदगानी है। हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। दूसरी बात सुन करके आपको हैरत होगी, कुरान ने सूरज को औरत कहा, मुअन्नस कहा, और चांद को मर्द कहा, मुज़क्कर कहा। आज की साइंस कहती है अगर सूरज से चांद को रोशनी ना मिले तो चांद बेनूर हो जाएगा। जिस तरह बच्चे से माँ को दूध मिलती है, जैसे बच्चे को माँ से दूध मिला करता है, उसी तरह सूरज से चांद को रोशनी मिलती है। साइंस आज कह रही है कि चांद सूरज से रोशनी पा रहा है। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज माँ की तरह है, चांद बेटे की तरह है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेब पर भरोसा नहीं करना है, दुकान पर भरोसा नहीं करना है, अल्लाह के खजाने पर भरोसा करना है। अल्लाह के खजाने पर आपको भरोसा करना है। आदमी को जब औलाद ज्यादा होती है तो दुनिया ताना मारती है, जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, कम बच्चे ज्यादा अच्छे, कम संतान सुखी किसान, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। कुरान कहता है कि अगर तुम गरीब हो बच्चा आएगा तुम अमीर हो जाओगे, अगर तुम अमीर हो बच्चा ज्यादा पैदा होगा, तुम गरीब नहीं होगे। तुम्हारी औरत अगर ज्यादा बच्चा पैदा करेगी वो बीमार नहीं होगी और उसको कैंसर की बीमारी नहीं लगेगी। कुरान ने कहा, आज की साइंस कह रही है, 1972 में रूस के साइंसदानों ने कहा कि इस जमीन में जिसमें हम ग़िज़ा निकाल रहे हैं, जिसमें हम फसल निकालते हैं,
उसमें अगर दिमाग लगाया जाए तो 9.5 खरब लोगों की खिसा निकाली जा सकती है। आपने सुना तो होगा कि एक मुर्गी 60 अंडे देती है, लेकिन देखा नहीं होगा, आज की दुनिया देख रही है कि फार्म की मुर्गी, एक मुर्गी 60 अंडे देती है। आपने सुना तो होगा 120 किलो दूध गाय दिया करती थी, लेकिन आज देखने वाले देख रहे हैं कि जर्सी गाय 120 किलो दूध देती है। अल्लाह बाद में तादाद को लाता है, पहले इस्तेदाद पैदा कर देता है। अगर बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही है। 6 बेटा हो गया, आने दो, 7वां आ गया, आने दो, 8वां आ गया, बरकत आ रही है। 2 बेटी के बाद नानी मर रही है, जल्ले तू जलाल तू इस बला कुत्ता। नीयत में फुतूर है, बेटा आएगा तो माल लाएगा, बेटी आएगी माल जाएगा, नीयत में फुतूर है। 2 बेटी पैदा हुई, तीसरी बेटी का नंबर है, घर छोड़ करके दूर बैठा हुआ है कि अगर पता चल गया कि तीसरी बार मेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया है तो पानी में डूब करके मर जाऊंगा, घर वापस नहीं आऊंगा। अब जैसे ही बेटी पैदा हुई, खबर पहुंची कि तुमको बेटी पैदा होगी, भागा, घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बीवी ने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, अल्लाह जो हमको देगा वही तो हम तुमको देंगे। अल्लाह ने अगर हमें बेटी दिया है तो हम तुमको बेटी दे रहे हैं, कसूर हमारा कहाँ है? उस मालिक की मेहरबानी है कि वो तुमको बेटी दे रहा है। जो घर का शौहर बेटी की पैदाइश पर घर छोड़ करके भाग गया था, बीवी की तसल्ली पर दोबारा घर वापस आ गया। जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। तुलसी पक्षी के पिए खटे न शरीतानी, तुलसी पक्षी के पिए खटे न शरीतानी, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, जो साहे रघुवीर, जो साहे रघुवीर। खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरों पर शम्सो कमर माओ शुमा 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 के वास्ते। ये जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। इंशाअल्लाह जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े जा रहे हैं, रोज अल्लाह की रोजी खाएंगे और जुमा से नमाज शुरू करेंगे। जरा ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग को टटोल करके आपको पैगाम दिया जाता है। 5वां नमूना, आखिरी नमूना खुदा की पहचान के हवाले से मैं आपको सुनाता हूँ। जल्दी से अपने से हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के सामने खड़े हैं, मुर्दे से कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ। मुर्दा खड़ा हो जाता है। क्या बात हुई? जबान की तासीर है, अल्लाह ने जबान में असर दिया है कि कब्र पर खड़े हो जाते हैं, मुर्दे से कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा भी सर पकड़ करके खड़ा हो जाता है, जबान में असर दिया है। साहबी रसूल पहुंचे, कहां पहुंचे हैं? किसरा के दरबार में पहुंचे हैं, रुस्तम के दरबार में पहुंचे हैं, सहाबी रसूल पहुंचे हैं। आपको सुना रहा हूं, तलवार पुरानी है, तलवार में जंग लगा हुआ है। रुस्तम ने कहा हमसे मुकाबला करना है, इतनी पुरानी तलवार से मुकाबला करोगे? हमसे मुकाबला करने
तुम्हारी तलवार में जंग लगा हुआ है। सहाबी रसूल के हाथ का बाजू का असर देखिए कि तुमने तलवार को तो देख लिया, बाजू की ताकत को नहीं देखा। बड़ी सी बड़ी ढाल मेरे सामने लेकर के आओ, मैं नारे तकदीर बुलंद करके उस पर वार करूंगा। टुकड़े न कर दिया तो मोहम्मद के रब की कसम खाता हूं। ये बाजू का असर था। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, एक ही जमीन है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा हुआ है। मुसलमान कहता है कि ये मेरी जमीन है, हम इसमें मस्जिद बनाएंगे, और गैर मुस्लिम कह रहा है कि ये मेरी जमीन है, हम इसमें मंदिर बनाएंगे। फैसला किस पर हुआ? जबान की तासीर बता रहा हूं, जबान का असर बता रहा हूं। ये जबान में असर कैसे पैदा होता है? आप हलाल कमाइए, हलाल खाइए, गुनाह छोड़ दीजिए, दिल में आपके खौफ खुदा हो तो निगाह में भी असर होगा, जबान में भी असर होगा, बाजू में भी ताकत हो। बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जमीन पर झगड़ा हुआ है, मुसलमान कह रहा है ये मेरी जमीन है, गैर मुस्लिम कह रहा है ये मेरी जमीन है, मैं इसमें मंदिर बनाऊंगा। मुसलमानों ने कहा कि मैं इसमें मस्जिद बनाऊंगा। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेज बेईमान इस मुल्क में हुकूमत कर रहा है। उसने सोचा कि बिल्ली को लड़ाओ, बंदर बन करके तमाशा देखो। मुसलमान से कहा कि देखो तुम किसी को गवाह बना लो, हिंदू से कहा कि तुम किसी को गवाह बना लो, गवाह की गवाही पर फैसला ले लो, वरना न तो मंदिर बनने देंगे, न तो मस्जिद बनने देंगे, बल्कि गिरजाघर बना देंगे। अब मुसलमानों ने सोचा, हिंदुओं ने सोचा कि हम दो भाई हैं, घर की लड़ाई है, अगर घर में हल नहीं करेंगे तो जमीन हमारे हाथ से भी जाएगी, तुम्हारे हाथ से भी जाएगी। तो दोनों ने मिलकर के एक आदमी को गवाह बनाया। ताज्जुब इस पर है कि हिंदुओं का मुसलमान पर कैसा एतमाद था, कैसा खुलूस था, कैसा भरोसा था। हिंदुओं ने कहा कि मैं अपनी तरफ से गवाह बनाता हूँ, हिंदू को नहीं मुसलमान को बनाता हूँ, मुफ्ती इलाही बख्श को बनाता हूँ, उनकी जबान पर हमें भरोसा है, वो जो गवाही देंगे हम उसको मानेंगे, हमारे खिलाफ गवाही होगी तब भी मानेंगे, हमारे हक में गवाही होगी तब भी कबूल करेंगे। तो अंग्रेज ने कहा कि सोच करके फैसला लो, तुमने मुसलमान को गवाह बनाया है, का सोच लिया, फैसला ले लिया, गवाह बना दिया, तुम कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह कांधला के शेर सामने आए और गवाही दिया। मैं अल्लाह के कुरान पर हाथ रख करके कहता हूँ कि सच बोलने वाला नजात पाता है, उसकी कौम नजात पाती है, झूठ बोलने वाला हलाक होता है, उसकी कौम हलाक होती है। मैं सच्चाई के साथ गवाही देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, गैर मुस्लिम की जमीन है। गैर मुस्लिम की जमीन पर बगैर इजाजत के, बगैर कीमत के अगर मस्जिद बनेगी, नमाज अदा तो होगी, कबूल नहीं होगी। तो अंग्रेज ने क्या जजमेंट लिखा, आपको सुनकर के हैरत होगी। अंग्रेज ने जजमेंट लिखा कि इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। अब अंग्रेज ने गैर मुस्लिमों से कहा कि तुम मंदिर बना सकते हो, तो गैर मुस्लिमों ने कहा कि अब मंदिर नहीं बनेगा, अब यहाँ मस्जिद बनेगी। कहा कि तुम्हारे हक में फैसला हो चुका है, मंदिर बनाओ। तो कहा कि इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले हम जरूर गैर मुस्लिम थे, मंदिर बनाना चाहते थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने मुझे मुसलमान बना दिया, अब यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद बनेगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 साल के बाद, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 700 साल के बाद हमला हुआ, उस हमले का नाम है तातारी हमला। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों ने तलवार उठाई, लेकिन तलवार ने कोई काम नहीं किया, मुसलमान कत्ल हो गए। लेकिन 30 साल के बाद वही कत्ल करने वाले कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये कैसे हुआ? खानकाह में बैठने वाले पीर का नाम था शेख अहमद दरबंदी, उन्होंने निगाह का असर डाला, जो शहजादे थे वो कलमा पढ़कर पैसे मुसलमान हुए, जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक बात बता रहा हूं, इतना बड़ा जलसा है, लाखों रुपए खर्च हुआ है, इतने दूर से मेहमान आए, आपने मोहब्बत से उनको सुना, मोहब्बत से रुखसत किया, लेकिन इनकलाब क्यों नहीं आता? इतना पैसा खर्च करने के बाद लोग दीनदार क्यों नहीं होते? मैं आपको 1 मिनट में राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तजर्बा करके देख लीजिएगा। आपकी तरह मेरे बाल सफेद नहीं है,
میرے بال کچے ہیں لیکن آپ کا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا وجہ ہے لاکھوں روپیہ برباد ہوتا ہے, انقلاب نہیں ہوتا, دیندار لوگ نہیں بنتے, جمعہ نمازی بن کر کے پھر کچے نمازی ہوتے ہیں, پکے نمازی نہیں بنتے. میں راز بتا رہا ہوں, دل مر چکا ہے, دل زندہ ہوتا تو جگانے پر جاگتا, جو دل مر چکا ہے وہ جگانے پر جاگتا نہیں ہے. جس کا دل جاگا, بیدار ہوا, جلسے سے بیدار ہوا تو سمجھ جائیے وہ سویا ہوا تھا اس لیے جاگا. جو بیدار نہیں ہوا اس کا مطلب اس کا ضمیر مر چکا ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو. بدل دے میرا رستہ, دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. 5 سے 7 منٹ آپ کا خرچ ہوگا. جوان تک پہنچ رہا ہوں, ماں بہن تک پہنچوں گا, جلسہ آپ کا نکل جائے گا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں. 100 مرتبہ بھی دعا ہوگی جنت میں انشاءاللہ آپ جوان ہو. جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے, ترقی کیسے ہوگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. نکاح نہیں کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, اس لیے ترقی نہیں ہو رہی ہے. دنیا الگ برباد ہو رہی ہے, دین الگ تباہ ہو رہا ہے. راز بتا رہا ہوں, 7 دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آؤ مجھ سے زنا کرو, موقع بہت اچھا ہے, بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا. 7 دروازے بند کر دیے ہیں زلیخا نے, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ مجھ سے زنا کرو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, ذرا دیکھو. زلیخا گئی, دیکھ کر کے آئی. ایک بار گئی, دوسری بار آئی, دوسری بار گئی, تیسری بار آئی. کہا کہ سارے دروازے بند ہیں, کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دروازے بند ہیں, خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لڑکی سامنے ہے, جوان موم بتی میں انگلی ڈالتا ہے نکالتا ہے, انگلی ڈالتا ہے نکالتا ہے, انگلی ڈالتا ہے نکالتا ہے. کون جوان ترقی کرے گا؟ جب وہ دلی کا وہ پاک دامن جوان بن جائے گا, ہمارا جوان ترقی کرے گا. بغل میں سامنے لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے, تنہائی ہے, فساد کا زمانہ ہے. لڑکی آبرو بچا کر کے مسجد آئی ہے اور جوان امام ہے, نماز پڑھانے والا. دیکھا کہ جوان بغل میں لڑکی چھپی ہوئی ہے, کوئی نہیں ہے, رات کا سناٹا ہے. موم بتی میں انگلی ڈالتا ہے نکالتا ہے, موم بتی میں انگلی ڈالتا ہے نکالتا ہے. اس لڑکی نے کہا کہ ارے اپنی انگلی کو کیوں چلا رہے ہو؟ کہ شیطان دل میں خیال ڈال رہا تھا موقع بہت اچھا ہے, زنا کر لو. تو میں نے نفس سے کہا کہ پہلے انگلی کو آگ پر رکھنے کی طاقت تم دکھاؤ, اس کے بعد جہنم میں چلنے کی طاقت دکھانا, اس کے بعد میں زنا کروں گا. تیسری بات, آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ زنا چھوڑ کر کے دیکھیے, نکاح کر کے دیکھیے, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا. بنو اسرائیل میں جوان ہے, لڑکی کو روز پیسہ لا کر کے بہلا پھسلا کر کے تیار کرتا ہے, ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے. بچے والی عورت آ گئی, پیٹ کی مجبوری ہے, غریبی نے پریشان کر رکھا ہے, بال بچے کو فاقے میں چھوڑ کر کے آئی ہے, اپنی آبرو کا سودا کر لیا. جب اس کے کپڑے اتارنے لگا تو لڑکی کانپنے لگی. جوان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے, تم خوشی سے تیار ہوئی ہو, پھر کانپتی کیوں ہو؟ کہا کہ اس خدا کا مجھے ڈر ہے. اسے شرم آئی, جب یہ عورت ہو کر کے خدا سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مرد ہو کر کے خدا سے کتنا ڈرنا چاہیے. آپ دارو چھوڑ کر کے دکھائیے, 1 سال دکھائیے, 10 سال اللہ آپ کو آگے کر دے گا. آپ ماں باپ کے لیے بھی اچھا کما لیں گے, بیوی بال بچوں کو بھی اچھا سنبھال لیں گے, پورے خاندان کو آپ سنبھال لیں گے. آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی, صحت میں بھی برکت ہوگی, اولاد میں بھی برکت ہوگی. 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے, دارو چھوڑ کر کے آپ دیکھیے.
मैं बता रहा हूँ, बाबर बादशाह इस हिंदुस्तान में आया, पहली बार हमला किया, हार गया, दूसरी बार हमला किया, फिर हार गया, तीसरी बार हमला किया, खानदान में हुकूमत लेकर के आया। आखिर कौन सी ताकत थी? दारू के साथ हमला करता था, हार जाता था, दारू से तौबा करके हमला करता है, मैदान मार जाता है। 3 लाख फौज है रुस्तम की। मुसलमानों की फौज कितनी है? 30,000। 30,000 ने 3 लाख को हरा दिया। पूछने वाले ने पूछा, रुस्तम ने पूछा कि तुम्हारी तादाद तो 3 लाख थी, मुसलमान तो मुट्ठी भर थे, 30,000 थे, मुसलमान से तुम कैसे हार गए? कहा कि तुम लोग दारू पीते हो, वो दारू नहीं पीते, तुम जिना करते हो, वो जिना नहीं करते, तुम रात में सोते हो, वो रात में जागते हैं, और तुम दिन में लोगों को लूटते हो, वो लोगों की खिदमत करते, इसलिए तुम हार गए, वो जीत गए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हक बात है, किसी तरह हजम कर लीजिए। जब आदमी दारू पीता है तो वो इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। कौन सा जानवर होता है? आपको सुनकर के हैरत होगी। पहले जब नशा, सर पर नशा आता है, वो बंदर बन जाता है, बंदर की तरह कूद रहा है, फान रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है। नशा जैसे सर पर आया, बंदर बन गया। उसके बाद क्या बनता है? कुत्ता बन जाता है, भो 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 करता ही भूख रहा है, ये भी काटने को दौड़ रहा, वो भी काटने को दौड़ रहा है। सर पे नशा आया, बीच दिमाग पर जब नशा आया तो कुत्ता बन गया। उसके बाद क्या बन जाता है? शेर बन जाता है, कमजोर पर जुल्म ढाता है, बीवी को मारता है, बच्चे को गाली देता है, घर में तूफान खड़ा कर देता है, कमजोर पर जुल्म ढाता है, शेर और भेड़िया बन जाता है। और आखिरी में क्या हालत होती? जब वो 4 चित हो जाता है तो सूअर बन जाता है। जैसे सूअर गंदगी में 4 चित पड़ा हुआ होता है, इसी तरह ये गंदगी में 4 चित पड़ा हुआ होता है। नफ्स के ताबे हुए, ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। मैं तो चाह रहा था कि जवान के पैगाम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया है जिसकी वजह से जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दे से समझा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तेजी से जलसे को खत्म कर रहा हूँ, जवान का पैगाम निकल रहा है, माँ बहनों तक पहुँच रहा हूँ। 5 मिनट में मुश्किल से आपका जलसा है, हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई, एक धक्का मारेंगे वो भी इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक डांसर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन। जब वो डांस करता था उसका दावा था कि मौलवी मेरे सामने होगा तो वो भी नाचने लगेगा। मौलवी के हाथ में अगर तस्बीह हो, लाठी के साथ हो, और मेरे डांस को देखे तो वो भी नाचने लगेगा। इतना बड़ा उसका दावा था। उसने तौबा कैसे किया वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इतना पैसा कमाया फिल्मी दुनिया में, फिल्म के स्टाइल को शो करने में इतना पैसा कमाया कि बैंक वाला हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मेरे बैंक में रखने के लिए आपके पास अब जगह नहीं है। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बैंक वाला पैसा लेने के लिए तैयार है। इतना पैसा हम रखेंगे कब? रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया, लेकिन कैसे मुसलमान हुआ आपको सुनकर के हैरत होगी। वो ये तलाश करता था कि पैसा तो कमा लिया, शोहरत तो मिल गई, मेरा नाम ऊंचा हो गया, बच्चा मुझे जानने लगा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। सुकून कैसे मिलेगा? उसको किसी ने बताया कि तुम इस्लाम कबूल करो, तुमको सुकून मिलेगा। वो इस्लाम ले आया, उसको थोड़ा सुकून मिला। कहा कि तुम मस्जिद बनाओ, तुमको सुकून मिलेगा। मस्जिद बनाया, उसको थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद जब उसने नमाज उसमें पढ़ना शुरू की तो कहता है कि मुझे आज जो सुकून मिला पूरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला।
اسلام سے سکون ملا، مسجد سے سکون ملا، نماز سے سکون ملا۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جب جمعہ کے دن آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو نیند کیوں آتی ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ موبائل آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ موبائل میں آپ رہتے ہیں، آپ کی نیند آنکھ سے اڑ جاتی ہے۔ لیکن آپ مسجد آتے ہیں، دعا پڑھ کر کے داخل ہوئے، خطبہ شروع ہوا، جھٹکے پہ جھٹکا آپ کو آ رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے تو اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ جب دل پریشان ہوگا، روح پریشان ہوگی تو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن وہی آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں، آپ موبائل مت دیکھیے، موبائل دیکھتے ہیں فلم مت دیکھیے، فلم سے آپ کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل ناپاک ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، اور آخرت کے لیے آپ کو دنیا سے منزل نہیں ملے گی، آپ یہاں بھی ناکام ہوں گے، وہاں بھی ناکام ہوں گے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا جوان کہاں ٹائم پاس کرتا ہے؟ موبائل میں ٹائم پاس کرتا ہے، کرکٹ میں ٹائم پاس کرتا ہے۔ یہ ٹائم پاس کرنے والا جوان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، 4 چیز واپس نہیں آتی ہے، 4 چیز واپس نہیں آتی۔ ارے اللہ کے بندے سب اٹھ گئے، بیٹھو پاگل سب کہیں کے۔ 5 منٹ کا جلسہ ہے، تھوڑا بیٹھو، جلسہ کو خراب کر رہا ہے یہ اٹھنی چولنی سب ہے۔ دھیان سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 5 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ امتحان میں مجھے ڈالنا نہیں ہے، جلدی سے مکمل کر رہا ہوں، لیکن بات مکمل ہو جائے اس کے بعد جائیے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوان کے حوالے سے 4 چیز واپس نہیں آتی۔ جو منہ سے بات نکل گئی وہ واپس نہیں ہوتی، جو کمان سے تیر نکل گیا واپس نہیں آتا، جو جسم سے روح نکل جاتی واپس نہیں آتی، اور جو زندگی کا حصہ، عمر کا حصہ کٹ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں کرتب دکھانے والا جوان آیا، اس نے سوئی کو گاڑا، دھاگا کو اٹھا کر کے مارا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، لوگوں نے تالی بجائی۔ کتنا بڑا کرتب دکھایا اس جوان نے کہ سوئی کو گاڑا، دھاگا کو یہاں سے اٹھا کر کے پھینکا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ کتنا بڑا کارنامہ اس نے کیا۔ ادھر سے تالی بجی، ادھر سے تالی بجی۔ بادشاہ نے کہا کہ 10 روپیہ اس کو انعام دو، کرتب دکھایا ہے اور 10 چوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ 10 روپے انعام مل رہا ہے، کرتب کر پر، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن 10 چوتے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا اس نالائق نے پڑھنے لکھنے میں محنت نہیں کیا، بیکار کام میں محنت کیا، بیکار کام میں محنت کیا، اس لیے 10 چوتے مارے جا رہے ہیں۔ اگر پڑھنے لکھنے میں محنت کرتا تو کتنا قیمتی بن جاتا، دوسرے کو بھیک دینے والا بنتا، خود بھکاری نہیں بنتا۔ ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے۔ حنود و نصارا کا کیوں تھوک جاتا کہ مجھے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا۔ محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائے وہ سنت میں کیا تو نے پایا، بتائے وہ سنت میں کیا تو نے پایا۔ تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا۔ ہمارا جوان داڑھی رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، عورتوں کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام دیتا ہوں، جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ساتھ دے دیا اور جلسہ تک مکمل کرا دیا۔ اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی سربلندی سے مالا مال فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ماں کی گود میں، باپ کی گود میں اگر چھوٹا بچہ بیٹا پیشاب کرے اور بدن میں پیشاب نہیں لگا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا اتار کر کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے،
एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी पानी मार दिया, कपड़े को गाड़ लिया, झाड़ दिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर बेटी ने पेशाब किया है तो कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। इस नुक्ते को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दूध पीता बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, पेशाब को पाक करना बिल्कुल आसान है। 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी पानी मार करके गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। बेटी ने पेशाब कर दिया, अब गाड़ लेने से, झाड़ लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा, पहले कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान है, बेटी पेशाब करे, पाक करना मुश्किल है। इसी से अंदाजा करो बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाओ। वो 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी होती है, दूसरी मंजिल में वो बीवी होती है, तीसरी मंजिल में वो माँ होती है, चौथी मंजिल में वो सास होती है। अगर तुमने बेटी को बेटी बना दिया तो अच्छी बीवी भी मिलेगी, अच्छी माँ भी मिलेगी, अच्छी सास भी मिलेगी। मर्द पढ़ता है, फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, खानदान पढ़ता है। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में औरत आई, शागिर्द आया है उस्ताद के घर पे, तो उस्ताद ने कहा कि बड़ा आलिम दीन है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। देखा क्या कि वजू किया ही नहीं, फजर की नमाज पढ़ लिया, खाना जम करके खाया, रात भर सोता ही रह गया। बेटी की निगाह पड़ी कि आपने तो कहा कि वली है, इतना खाया है कि पेट था कि इंडिया गेट था, खाता ही चला गया। अल्लाह का वली होता तो इतना कैसे खाता, और अल्लाह का वली होता तो रात में जाग करके तहज्जुद पढ़ता, तहज्जुद तो नहीं पढ़ता, फजर की नमाज में वजू करता, वजू तो नहीं किया। एतराज किया, जब जवाब आया तब बेटी को तसल्ली हुई। ये है बेटी, किसी की बात पर भरोसा नहीं किया, तजर्बा करके देखिया असली पीर है या जाली पीर है। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं है, वापिस आया तो पैसा लेकर के आया। माँ ने कहा कि रुक जाओ, घर में बाद में दाखिल होना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे बाप का साया तुम पर सर पे सर नहीं है, तुम यतीम हो, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं था, पढ़ने के लिए गए थे लेकिन वापिस आए, पैसा कहां से आया, इसका जवाब दो, ये चोरी का पैसा तो नहीं है। तो बेटा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, इम्तिहान पास किया था, उस्ताद मालदार थे, इनाम दिया, माला माल कर दिया, ये इनाम का पैसा है। तो माँ भी कैसी थी, वली को जन्म दिया करती थी कि बेटा मैं दुनिया से कैसे कहती फिरूंगी कि मेरा बेटा चोरी का पैसा लेकर के नहीं आया, इनाम का पैसा लेकर के आया है। पहले सदका करो, बाद में घर में दाखिल हो, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, 3 मर्दों को गिरफ्तार किया गया है। औरत आकर के कहती है मेरे 3 रिश्तेदार हैं, तीनों को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारी खातिर एक को छोड़ूंगा, जिंदा छोड़ूंगा, बाकी को फांसी पर चढ़ा दूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको बचाना चाहो, जिसको मौत के हवाले करो। तो उस औरत ने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा शौहर है, ये मेरा भाई है, तीनों मेरा करीब का रिश्तेदार है, तुम मुझे इम्तिहान में क्यों मुब्तला करते हो, तीनों को छोड़ दो। कहा एक ही को छोड़ूंगा, जबान जो दे दी उसी जबान पर मैं कायम रहूंगा, 2 की गर्दन उड़ाऊंगा, एक को जिंदा छोड़ूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको बचाना चाहो। उस औरत ने कहा मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा कि औरत तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए, भाई बहन पर जुल्म करने वाले भाई अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखिए, अगर आप बहन पर जुल्म करेंगे दुनिया आपके ऊपर जुल्म करेगी। उस बहन ने कहा कि मैंने बेटे को नहीं बचाया, शौहर को नहीं बचाया, तुमने एक ही को बचाने का इख्तियार दिया था, मैं जवान हूँ, मेरा निकाह हो जाएगा, मुझे शौहर मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा वो मेहरबान हुआ तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा, इसलिए भाई को बचाया। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इस पर आपका पूरा मुकम्मल जलसा मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रात का सन्नाटा है, बादशाह भेष बदल करके गली से गुजर रहा है, तो देखा एक लड़की कह रही है वो जा रहा है, दूसरी लड़की कह रही वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है।
بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، یہ جاسوس لڑکی ہے، جاسوسی کر رہی ہے۔ پولیس والے کو بھیجا، پکڑ کر کے تینوں لڑکی کو لے کر کے پولیس والے آئے۔ ایک لڑکی کہتی ہے کہ وہی تو ہے، دوسری لڑکی کہتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی کہتی وہ نہیں وہ تو ہے۔ اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا کہ پہلی بار کیا کہا نہیں سمجھا، دوسری بار کیا کہا نہیں سمجھا، لڑکیوں سے کہا کہ کیا کہا تھا کہ وہ جا رہا ہے، وہ نہیں ہے وہی تو ہے، پھر کہا کہ وہی تو ہے، وہ ہوتے تو وہ ہوتے، وہ نہیں وہ تو ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ جس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ چراغ سے اجالا جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے یعنی اجالا جا رہا۔ آپ سے مطلب نہیں تھا، آپ مراد نہیں تھے، بلکہ چراغ چل رہا تھا، اجالا جا رہا تھا، تو لڑکی نے کہا وہ جا رہا ہے۔ تو دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں، اس لیے اجالا جا رہا ہے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ تو ہے، تیل تو ہے، پھر اجالا کیوں جا رہا ہے، یہ مطلب تھا۔ کہا کہ دوسری بار جو کہا کہ وہی تو ہے، دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے، تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں وہ تو ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بادشاہ سلامت معاف کیجیے گا، اب بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے یعنی بیل ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے بیل ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے، اگر بادشاہ بیل ہوتا تو دم ہوتی اور سنگ ہوتی، دم اور سنگ تو نہیں ہے۔ تو تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں وہ تو ہے، اگر بیل نہیں ہے تو گدھا تو ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کا جلسہ عمر بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ تین وجہ سے گھر میں آفت آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حلال نہیں حرام کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت ہے۔ تین چیزوں کو چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تھے روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تھے لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين، اللهم اشفنا واشفهم شفاء من كل داء۔ اے ہمارے پروردگار، اس مدرسے کو قبول فرما، اس کو تعلیم تعاون دونوں سے آباد فرما، ہم سب کے مقصد کو پورا فرما، مشکل کو آسان فرما، حال کو خوشحال فرما، مستقبل کو روشن فرما، ماضی کی تلافی کا بھرپور موقع عطا فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اے ہمارے پروردگار، پیر قبر میں لٹک چکا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، ناتی پوتا ان کی جگہ لینے کے لیے آ گئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما۔ جن بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، ان بچوں کو دین کی سربلندی عطا فرما، آخرت کی سرفرازی عطا فرما،
ان کے ماں باپ کی دل کی مراد ان سے پوری فرما، ماں باپ کے مستقبل کو ان بچوں سے روشن فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے ان بچوں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑی تعداد میں جوان کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کو جائز روزگار عطا فرما، ان کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کو ماں باپ کی خدمت کے لیے قبول فرما، رشتہ دار کا خرچہ اٹھانے کی صلاحیت ان میں پیدا فرما۔ اللہ ان کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا داعی، دین کا شہدائی بنا۔ بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں ہماری جلوہ گر ہیں، جلوہ نشی ہیں، اے ہمارے پروردگار ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کی بیماری کو دور فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، جنت جانے والی بنا، جنت لے جانے والی بنا، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار چھوٹے چھوٹے بچے، ملت کے بچے، سادہ لو معصوم بچے، فرشتے کی طرف بے گناہ بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو قبول فرما، ان بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا۔ ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، سب کے مقصد کو پورا فرما، سب کی غریبی کو دور فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی بیماری کو دور فرما، سب کی تنگی کو دور فرما، سب کو خوشحال فرما، سب کے دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔